Good morning, everyone. So, dear students, as you know, we are doing chapter 5th decimal fractions. Okay. Multiplication concept we have already done. Now we are doing division and statement sum. Exercise 5.9 and 5.10. Clear? So now I am going to present my screen. Screen is visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it is visible. So we are doing chapter 5th decimal fraction. Today we will do last exercise, exercise 5.9 and 10. First of all, recapitulate division concept. Here in division, we have done division by 10, 100,000. Like in multiplication concept, same we have done now multiplication by 10, 100,000. Same in division. And second one is division by whole number. And third one division by decimal fraction. क्या है इसमें? एक तो है कि डिवीजन हमने करनी है जिसमें डिविडेंड हमें सिंपल नंबर है और डिवाइजर किसमें है 10, 100,000 में. वहां पे नो नीड टू सॉल्व द फुल डिवीजन, जस्ट हमने सिंपल डिवीजन करनी है. लेफ्ट हैंड साइड को डेसिमल ने शिफ्ट होना है अकॉर्डिंग टू द जीरो इन डिवाइजर. क्लियर? सेकेंड में था डिवीजन बाय होल नंबर, मीन्स टू से one decimal fraction is given to you and you have to divide with whole number. whole number का यहाँ पे क्या मीनिंग है? जो डिवाइजर है वो किसमें है? whole number में है, without any decimal. third one is division by decimal fraction. in this concept division by decimal fraction, सिंपली डिविडेंड जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में होगा और जो डिवाइजर है वो भी डेसिमल फ्रैक्शन में होगा. क्लियर? Yes. So students, let's see here. Number is given 36 decimal 54 divided by 1 decimal 5. So here, first of all, write in chat box कि both the division in whole number or in decimal fraction. ये जो क्वेश्चन है ये किसकी कंसेप्ट है? डेसिमल फ्रैक्शन और होल नंबर की. राइट इन चैट बॉक्स. वेरी गुड परीक्षा, गुड, शाबाश. गजल, यस, डेसिमल की, शाबाश, गुड. So, okay. Now, write in chat box from these decimal fraction, dividend and divisor. First of all, write इनमें से dividend कौन सा है? Write in chat box which one is dividend. Okay. शाबाश. All of you participate बेटे. Write down. डिविडेंड है 36 decimal 54. Good. And now write divisor. Divisor. Okay, very good. So जो डिविडेंड है वो भी डेसिमल फ्रैक्शन में है 36 decimal 54 और जो डिवाइजर है वो भी डेसिमल फ्रैक्शन में है 1 decimal 5. इनमें से कोई भी नंबर जो है होल नंबर नहीं है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.8. Okay, now see this activity. First of all, listen carefully. Here you have to do the matching. Matching आपने किस तरह करनी है? Listen the rule. Question number 1, 2, 3, 4 are given here. Clear? Division by 100, division of decimal fraction by whole number, division of decimal fraction by a decimal fraction.
डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें बेटे आपको एक्सरसाइज 5.6 से लेके 5.9 तक के जितने डिवीजन के डेसिमल कॉन्सेप्ट है वो सभी हैं इसमें। क्लियर? आपने क्या करना है, सेकंड जो है इसमें कि ए बी सी डी ई आंसर्स आर गिवन, तो यू विल राइट इन चैट बॉक्स कि फर्स्ट वाले का आंसर ए है, बी सी डी और ई। डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 100, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। डी ऑप्शन इज हियर कि 86 डेसिमल 51 डिवाइड बाय 100। ओके, एफ एफ तो नहीं है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय होल नंबर। हियर जो डिवाइस है वो होल नंबर है और जो डिविडेंड है वो डेसिमल में है। डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ए क्वेश्चन, ए नंबर, ओके, यस, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। कि जो नंबर ए ऑप्शन है 3.54 वो है आपका डिविडेंड, वो डेसिमल फ्रैक्शन में है, और 43 जो है वो क्या है, होल नंबर में। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, division of decimal fraction by a decimal fraction। division of decimal fraction by a decimal fraction। ओके, ई पार्ट है, वेरी गुड। बी, गीतू चोपड़ा के नेम से। ओके, आप अभी बेटे आई एम आस्किंग थर्ड क्वेश्चन। ओके, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन, ई पार्ट है कि 19.23 डिवाइड बाय 0.6। बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर इन डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, division of a whole number by a decimal fraction। B, division of a whole number, yes, good। कि whole number given है B ऑप्शन में 447, whole number mean without any decimal, simple fraction, simple number is given ना, and decimal fraction जो divisor है वो है 11.7। clear? So these matchings are clear to everyone। See the answer। नंबर 1, डिवीजन बाय 100, आपको क्लियर है कि डी ऑप्शन है। डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय होल नंबर। वन थिंग मोर, हियर सी ऑप्शन इज गिवन, किसी बच्चे ने सी ऑप्शन को यूज नहीं किया। क्या आपने चैट बॉक्स में मुझे यस और नो में आंसर करना है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन जो सेकंड वाला है बाय होल नंबर, तो क्या वहां पे सी ऑप्शन अप्लाई हो सकती है? सभी बच्चे पहले आंसर करो, देन आई विल टेल द आंसर। ओके, यस, वेरी गुड, शाबाश। कि सी ऑप्शन भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। रीजन बिहाइंड कि अगर हम सिंपली देखें तो 10 जो है वो भी क्या है, होल नंबर है। क्लियर? तो डेसिमल फ्रैक्शन 86 डेसिमल 51 है, तो होल नंबर 10 है, वो भी इसमें कंसिडर हो सकती है। शाबाश। ओके, नाउ बेटा, this is the question number 4 of exercise 5.10। last exercise है statement sums। here one statement is given, no need to note down the statement, okay, already in your book now, you open book exercise 5.10। this is the question number 4। a bottle of ink contains 0.375 liter of ink। वन बॉटल है इंक की, उसमें कितनी इंक आ रही है, 0.375 लीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन चैट बॉक्स कि डेसिमल 375 लीटर, इसमें मिलीलीटर कितने हैं? राइट इन चैट बॉक्स। 0.375 लीटर है, तो मिलीलीटर इसमें कितने हैं? हरी अप। ओके, शाबाश। एक
स्टूडेंट ने साथ में मिलीलीटर का यूनिट भी लगाया है सुरेश शर्मा के नेम से। वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन आपको ये चीज क्लियर है कि लीटर और मिलीलीटर के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लीटर गिवन नहीं है, वो 0 है। क्लियर। तो डेसिमल 375 वो क्या है, मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को हम ऐसे बोल सकते हैं 375 मिलीलीटर। क्लियर। हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू कंटेन 13.5 लीटर्स ऑफ इंक। कहते हैं हमने इसमें क्या चीज फाइंड करनी है, बॉटल्स फाइंड करनी है कि कितनी बॉटल्स में 13.5 लीटर ऑफ इंक आ सकती है। 1 बॉटल में कितनी इंक आ रही है, 0.375 लीटर। और कितनी बॉटल्स में, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉटल्स। नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है कि उसमें कितनी इंक आएगी। जो टोटल हमारे पास इंक की दी हुई है क्वांटिटी, वो है 13.5 लीटर। 13.5 लीटर को लीटर और मिलीलीटर में लिखो चैट बॉक्स में। राइट इन चैट बॉक्स 13.5 लीटर इंटू लीटर एंड मिलीलीटर। शाबाश। विद प्रॉपर यूनिट कि इसमें लीटर कितने हैं और मिलीलीटर कितने हैं। 13 लीटर 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर होएगा। 13 लीटर वो करेक्ट है। 5 मिलीलीटर को कुछ और। शाबाश। 135 मिलीलीटर रॉन्ग है बेटे, क्योंकि डेसिमल है बीच में। इट मीन जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो लीटर का है, डेसिमल के बाद वाला मिलीलीटर का है। क्लियर। ओके। 13 लीटर 375.05 मिलीलीटर। जीरो हमने कहां से लगाई है यहाँ पे, ये है 13 लीटर 500 मिलीलीटर। क्लियर। वेरी गुड। सिमर धमीचिया के नेम से जो भी बच्चा है ये, वेरी गुड, शाबाश। ओके, नाउ मूव टू द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड होंगी या डिवाइड करके। राइट इन चैट बॉक्स कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। राइट इन चैट बॉक्स। अगर मैम ने वेरी गुड बोला है, इट मीन आपको लगा कि ये आंसर कॉन्सेप्ट जो है मल्टीप्लाई में, एक ने लिखा तो सबने मल्टीप्लाई में बेटे आंसर कर दिया। सी हियर, जो क्वेश्चन है वो है, लिसन द स्टेटमेंट केयरफुली। आपको टोटल क्वांटिटी गिवन है। ओके, टोटल क्वांटिटी इंक की गिवन है 13.5 लीटर। और आपने क्या करना है, नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है, जबकि 1 बॉटल में इंक की जो क्वांटिटी है वो भी गिवन है। तो बेटे इसके लिए वी हैव टू डिवाइड, नॉट मल्टीप्लाई। क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये जरूरी नहीं कि अगर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हुआ तो सच वर्ड यूज होएगा कि 1 की वैल्यू गिवन है और लाइक 14 सच ऐसे करके लिखा, नो। और डिवाइड का क्वेश्चन हुआ तो ज्यादा की क्वांटिटी गिवन हुई और आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 1, नो। ये क्वेश्चन को मोल्ड करके दिया है बेटे। आपने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। वहां से आपने सच और ईच वर्ड को नहीं फाइंड करना, वो नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी गिवन है और 1 जो है बॉटल में इतनी इंक आ रही है, तो हमने नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। क्लियर। ओके, नाउ नोट डाउन दिस सोल्यूशन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ इंक इन 1 बॉटल, 1 बॉटल में कितनी इंक है वो क्वांटिटी गिवन है 0.375। यस बेटा जी, नोट डाउन इन नोटबुक, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लिसन केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन द मीनिंग। ओके, नंबर ऑफ बॉटल्स, क्या चीज हमने कही थी कि नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है। बेटा जी, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
सोल्यूशन ओनली, इतने में तो आपका नोट डाउन भी हो जाना था, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड फॉर 13.5 लीटर इंक। सबसे पहले जब आपको बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, then you will be able to solve this question yourself. Okay, तो 13.5 को हमने क्या किया, डिवाइड किया 0.375। see here the method, जो मेथड है वो ये है, हमने कहा था इसमें डिविडेंड जो है वो 13.5 है और जो डिवाइजर है वो है 0.375। क्लियर? अब इसमें जो डिवाइजर है, डिवाइजर को कभी भी आप डेसिमल वाला डिवाइजर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट द डिवाइजर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल होल नंबर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ होल नंबर? कि आपने डिवाइजर का डेसिमल हटाना है। क्लियर? आपने डिवाइजर का, यस बेटा, नोट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बोथ आर राइट इन चैट बॉक्स बेटे। मैम जो अभी आपने क्वेश्चन करा है मैम, इसमें मैम हम सब में ऐसे ही कर सकते हैं मैम, जैसे जो 1 बॉटल मैम 375 लीटर, तो मैम इसको सिंपल में भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल में कैसे बेटे? मैम जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हो कि कैलकुलेशन सिंपल कैसे। कि बेटे सबसे पहले आपने स्टेटमेंट तो फ्रेम करनी है इसके लिए, ठीक है? उसके बाद आपने सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि 13.5 को 0.375 से बस उसको डिवाइड किया है। पहले आपने स्टेटमेंट, हाँ जी मैम इसमें मल्टीप्लाई होगा। हाँ, मल्टीप्लाई कैसे होएगा बेटे? टेल मी। आप ना ये मत देखो कि वहां पे आपको 1 बॉटल की क्वांटिटी गिवन है और बहुत ज्यादा की फाइंड कर रहे हो। नो, इस क्वेश्चन में मैं ये कह रही हूँ सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। जैसे इंग्लिश में चैप्टर होता है तो आप क्या करते हो, उस सेंटेंस को अपने मीनिंग में ट्रांसलेट करते हो। सेम यहाँ पे वही चीज है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अपने मीनिंग में समझो कि वो क्या है। क्लियर? ये नहीं देखना कि वो स्मॉल वाला नंबर गिवन है और 13.5 बिगर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो, क्लियर? स्टेटमेंट को समझना है। ओके, अब डिवाइजर का डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय, यहाँ पे एक तो है डेसिमल के बाद 375, 3 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ कितनी जीरो लग जाएंगी, 3 जीरो। 1000 से नीचे और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? वो आपको कंसेप्ट क्लियर है कि आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई को कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, कि 13.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहां पे शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड। और सेम डिवाइजर में, अब डिवाइजर 375 आया। क्लियर बेटे? अब जो मैंने आंसर लिखा है ना 36 बॉटल्स, आपने इसकी कैलकुलेशन डिवीजन में खुद सॉल्व करनी है, बाद में इसका आंसर करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर दे दिया आपको बेटे, आपने आफ्टर द क्लास इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके देखना है। 375 को 13,500 से डिवाइड करके देखना है कि 36 आंसर आ रहा है। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5। मैम नो। हार्डली मैटर बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। सी हियर सेम क्वेश्चन है, फोर्थ की तरह ही। 1 मीटर कॉस्ट, क्लॉथ की कॉस्ट गिवन है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट गिवन है ₹8.35। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी परचेस्ड? अब यहाँ पे सेम वही बॉटल ऑफ इंक वाला ही कॉन्सेप्ट है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास रुपीज है 116.90, मीन्स टू से 116 रुपीज 90 पैसा। ठीक है? इतने पैसा में हम कितने मीटर क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, जबकि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें गिवन है। स्टेटमेंट क्लियर
होगी सब स्टूडेंट्स को कि हमें टोटल कॉस्ट जो दी हुई है कि 116 रुपीज 90 पैसा रुपीज में हम कितने मीटर क्लॉथ परचेज कर सकते हैं, जबकि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें गिवन है। सोल्यूशन में 1 मीटर कॉस्ट गिवन है, क्लॉथ की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ₹8.35 मीन्स टू से ₹8.35। क्लॉथ परचेज्ड फ्रॉम, कितने मीटर क्लॉथ हम परचेज कर सकते हैं कितनी मनी से, 116 रुपीज 90 से। ठीक है, तो डिवाइड करें। जस्ट ए मिनट बेटे, दोनों सम की प्रॉपर डिवीजन करनी है। यस यस। तो इसमें भी सी हियर जो डिवाइजर है वो किसमें है, डेसिमल फ्रैक्शन में है। यस बेटे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इसमें भी जो डिवाइजर है वो है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर का डेसिमल हटाना है, उसको सिंपल होल नंबर में लेके आना। उसके लिए क्या करना है, डिवाइजर को चेक कर लेना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 3 5 मीन्स 2 से 1 के साथ कितनी जीरो लगेंगी, डिनोमिनेटर चेक करना है सबने। तो आ गई 2 0 बन गया 100। सेम 100 से नीचे मल्टीप्लाई, 100 से आपने ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पता है सबको कि राइट हैंड साइड आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 116। लेट मी फिनिश बेटे, वेट। 116 डेसिमल 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड, वो भी सिंपल होल नंबर बन गया है 11,690 डिवाइड बाय 835। एक चीज और, जब हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो जो डिवाइजर है वो होल नंबर में सिंपल आ सकता है अगर डिविडेंड, जो ऊपर वाला नंबर है डिविडेंड अगर डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है मल्टीप्लाई के बाद, तब आप उसको डिवाइड जो करोगे डिविडेंड को तो डेसिमल से ही करोगे। बट जो डिवाइजर है आपका वो सिंपल होल नंबर में होना चाहिए विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। क्लियर। आफ्टर दैट सॉल्व सिंपल डिवीजन एंड कंपेयर योर आंसर कि 14 मीटर आपका आंसर आ रहा है। क्लियर। हाँ जी बेटे, नाउ कौन सा स्टूडेंट था, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। If any student has any doubt, please write in chat box. Ma'am, I have a doubt. Yes, beta ji, write in chat box. Kamya Sachdeva के नेम से। I hope these 2 questions are clear. स्टेटमेंट सम्स में बेटे जब डिवीजन करनी है, डिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले यही चीज चेक करनी है कि जो डिवाइजर है वो हमें डेसिमल में नहीं कर सकते, उसको सिंपल होल नंबर में लेके आना है। क्लियर। I hope these 2 questions are clear to everyone. Yes, ma'am. Sum number C of exercise 5.8. My answer is coming wrong. क्या चीज रॉन्ग आ रही है बेटे 5.8 में? लिसन, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ए है, बी है, सी, एच, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कंसेप्ट पहले करेक्ट होना चाहिए। जो 5.8 एक्सरसाइज है उसमें जो है डिवीजन, डिविडेंड और डेसिमल बोथ आर इन डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, 5.8 में। क्लियर। तो सबसे पहले आप, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ओनली, ओके, नॉट आंसर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें सेम डिवाइजर का डेसिमल जो है उसको हटा के होल नंबर में चेंज करके
डिवीजन कर देनी है। क्लियर? So that's all from my side. Deepika ma'am. Yes, Yes, please. my voice is audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, audible. Okay. Excuse me, ma'am. Tanishka. मैम उसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम उसमें मेरी 1-0 आंसर में कम आ रही थी। आपने एक जीरो नहीं ली होगी। Okay, you send that question on my WhatsApp number. I'll check that question. Okay. ओके मैम। Yes, very good morning to all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, किसी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है और अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करनी, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, आपको एंड ऑफ दिस सेशन जो है आपसे डाउट्स लिए जाएंगे, बीच में आपने अनम्यूट कर कर नहीं बोलना है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे, जब भी आपको एक्टिविटी से रिगार्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, पहले उसको केयरफुली सुनो और उसके बाद आपने आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको बहुत ध्यान से सुनो और उसके बाद आपने आंसर करना है। और सभी हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और उसके बाद बच्चे, जो हमारी एक्टिविटी है वो आज थोड़ी आपके सीईटी के साथ बेस्ड होगी। आपका सीईटी जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके बाद हम और एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपके सीईटी सिलेबस में जो है वो पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो मिलान करो का मतलब होता है मैचिंग। वन साइड जो है आपको शब्द दिए गए हैं और नेक्स्ट साइड जो है आपको उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैचिंग्स करनी है। मैचिंग्स में आप क्या करोगे, ए के बाद लिखोगे कि उसका राइट ऑप्शन कौन सा है, 1 2 3 4 5 में से कौन सा राइट ऑप्शन है। उसके बाद बी लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि उसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा है। देन सी उसका राइट ऑप्शन लिखोगे, देन डी उसका राइट ऑप्शन लिखोगे। आपको नंबर्स ही लिखने हैं, आपको टाइप नहीं करना है कुछ भी, आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। आपको हिंदी टाइप नहीं करनी है। इज इट क्लियर? पहले उसको अच्छे से पढ़ो और देन अपने आंसर्स जो है वो स्टार्ट करो देना। गीतू चोपड़ा, बच्चे आपने सभी आंसर्स देने हैं। आपने पहले अल्फाबेट लिखना है ए, उसके बाद उसका सही आंसर लिखना है, उसके बाद अल्फाबेट 2 लिखना है, बी लिखना है, उसके बाद उसका सही जो है नंबर में आंसर लिखना है। विनायक, बच्चे सारा इकट्ठा ही लिख दो। पहले आप ए का लिखोगे, बी का लिखोगे, ऐसे नहीं, इकट्ठा टाइप करो सारा। यस, वेरी गुड, ध्यान से पढ़ो इसको। और जिनके आंसर्स हो जाएंगे वो अपनी नोटबुक पर भी साथ साथ में जो है वो लिख लो, ताकि आपकी स्पेलिंग्स की भी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, सरबजीत कौर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका मेरे पास आंसर आया है ए का 3, बी 4, सी 5, डी 2 और ई 1। ओके, बच्चे मोस्टली आंसर देना शुरू कर दिया बच्चों ने। और राकेश बत्रा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका भी आंसर आ गया है 3 4 5 2 1। ओके, यस, सभी ने पार्टिसिपेट करना है बच्चे। गलत हो जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप गलत लिखते हो, लेकिन पार्टिसिपेट सभी ने करना है और सभी ने आंसर्स देने हैं। बच्चे जैसे पूरा पूरा बच्चे लिख के भेज रहे हैं, सेम उसी तरह आपने लिख के भेजना है। ए के आगे जो है सही ऑप्शन, बी के आगे सही ऑप्शन, सी के आगे सही ऑप्शन और डी के आगे और ई के आगे सही ऑप्शन लगाओगे आप। वेरी नाइस, मोस्टली बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं। प्रीशा का आंसर आ गया है मेरे पास, नवल का आंसर आ गया है, और मोस्टली बच्चे जो हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी सीईटी की जो है वो तैयारी की है अच्छे से।
वेरी गुड। यस, सभी आंसर देंगे। और बच्चे रिपीट मत कीजिए, अगर आपने एक बार आंसर दे दिया उसके बाद मैंने आपको बोला कि अपनी नोटबुक पे लिखो ताकि आपकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाए। दोबारा दोबारा चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो इसको, क्योंकि आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स ही होती हैं। आपको आंसर पता होता है, हिंदी और पंजाबी में आप बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, इसलिए अभी आपके पास टाइम है। आप जो है अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप साथ ही साथ जो है अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो। ओके, तो मोस्टली बच्चों के आंसर्स जो हैं वो आ गए हैं मेरे पास। तो माता का सही ऑप्शन है जननी अंबा। ठीक है, माता को जननी भी बोला जाता है और अंबा भी बोला जाता है। आसमान, गगन, नभ, सुबह, भोर, प्रत्यूष। यहाँ पे य को बड़े ऊ की मात्रा आनी है। आपकी असाइनमेंट में जो है वो करेक्शन करवाई थी, इसको ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद सूर्य, रवि, भास्कर और घर का गृह आल्य। क्लियर? तो आपको इसी तरह जो है आपके जब गूगल फॉर्म में आपको सीटी भेजा जाएगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़कर जो है अपना आंसर जो है वो देना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर मैचिंग है। वन साइड जो है वो वाक्यांश लिखे गए हैं और उसके लिए एक शब्द जो है वो दूसरी साइड लिखा गया, ठीक है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है कि अनेक शब्दों की जगह हम जब एक शब्द को यूज करते हैं उसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपको अब क्या करना है, दोबारा इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर्स जो है मेरे को देने हैं। सेम प्रोसीजर वही है जो आपने जो है प्रीवियस एक्टिविटी में किया था। आपको ए के बाद सही ऑप्शन लिखना है, बी के बाद सही ऑप्शन लिखना है, सी के बाद सही ऑप्शन लिखना है, डी के बाद सही ऑप्शन लिखना है और ई के बाद सही ऑप्शन लिखना है। और उसके बाद जो बच्चे आंसर देते जा रहे हैं वो अपनी नोटबुक्स पे जो है वो लिखेंगे रैंडमली। मैंने किसी भी बच्चे को बोल देना कि अपनी नोटबुक जो है वो मुझे शो करो कैमरा में, इसलिए आपकी स्पेलिंग्स की जो है साथ में प्रैक्टिस हो सके, इसलिए आपने आंसर्स जो है अपनी नोटबुक पर भी लिखने हैं। यहाँ पर आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स दोगे, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप अपनी नोटबुक पर लिखोगे। मोस्टली बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। संवित दुग्गल के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उसके आ गए हैं। गुरिंदर कुमार विनायक की आ गया है। यस बच्चे, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो ली जाएंगी। बीच में क्वेश्चंस मत करो, ऐसे डिसेबल हो जाते हैं हमारे लिए भी, ठीक है ना, इतने पीछे से चैट देखना। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप एंड में जो है पूछ सकते हो, चाहे आपको किसी भी टीचर के साथ है। तीनों टीचर्स जो है अभी यहाँ पे क्लास में हैं आपकी। तो बच्चे आंसर दे रहे हैं 4, 5, 1, 2, 3। 3, 4, 5, 2, 1। ओके ओके, अच्छे से पढ़ो बच्चे, अच्छे से पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आरती शर्मा, आपका आंसर मेरे को क्लियर नहीं है, आपने क्या लिखा है उसको दोबारा आप टाइप कर दीजिए प्लीज। यस ओके, 4, 5, 1, 2, 3 ज्यादा बच्चे मोस्टली ये लिख रहे हैं। कुछ जो है बच्चे 3, 5, 2, 1, 3 भी लिख रहे हैं। 4, 5, 1, 2, 3 मोस्टली बच्चों के आंसर। ये सचिन अरोड़ा के नाम से इन्होंने 2 बार ऑप्शन 4 लिख दिया है, ए और बी दोनों में ऑप्शन 4 लिख दिया है। बच्चे चेक करो उसको, सचिन अरोड़ा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया। ओके यस बच्चे, सभी आंसर्स दो। गलत हो जाएगा कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है कैसे आंसर्स देने हैं। अगर आप पढ़ोगे तो इजीली आप मतलब कि ऑप्शंस में से फाइंड कर सकते हो कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। 4, 5, 1, 2, 3। यस मोस्टली बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं
और मैं बोल रही हूँ कि रैंडमली मैंने किसी भी बच्चे को पूछ लेना है कि अपनी कॉपी शो करो, मैंने देखना है आपने आंसर्स अपनी नोटबुक पर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। बार बार बोल रही हूँ, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जितने भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, उसकी प्रैक्टिस जो है आप जितना लिख कर करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी आपकी लैंग्वेज में। ओके, यस, तो हमारा सही आंसर है 4 5 3 2 1। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जिस भूमि पर खूब उपज हो, उपजाऊ। ठीक है, तो आप इसको दोबारा एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ओके, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर के साथ रिलेटेड है, जो चैप्टर आपको सीईटी में आना है। ठंड में अंडे की जर्दी जम गई है, ये बात सही है कि गलत है? ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2 सही है, लिखिए। यस, फटाफट आंसर आ रहे हैं मेरे पास, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बच्चे। इसका मतलब आपने कविता लर्न की है ना? ओके, मोस्टली बच्चों ने आंसर दिए हैं और मोस्टली सभी ने ऑप्शन 1 लिखा है और आप सभी का ये करेक्ट है। ऑप्शन 1 सही है। कवि इसमें कहता है कि भगवान ने इतनी ठंड कर दी है कि अंडे की जो जर्दी है वो भी जम गई है। जर्दी आपको बताया था मैंने कि अंडे के बीच में जो पीला भाग होता है उसको जर्दी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सिकुड़ी शब्द का क्या अर्थ है? अकड़ी हुई, सिमटी हुई, दबी हुई, खुली हुई। ये आपके शब्द अर्थ में से क्वेश्चन दिया गया है। ओके ओके, ऑप्शन 2 जो है वो बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड, यस बच्चे, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। सिकुड़ी हुई मतलब सिमटी हुई। मैंने आपको बताया था कि जब हमें बहुत सर्दी लगती है तो हम तेजी से नहीं चलते हैं, हम मोस्टली क्या करते हैं, अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं, बाजुओं को क्रॉस कर लेते हैं और धीमी धीमी चाल चलते हैं, है ना, क्योंकि हमें सर्दी लग रही होती है, तो उसको बोलते हैं सिमटी हुई। ठीक है, तो इसके बीच में एक बात जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने कल आपको एक वाक्य बनाने के लिए जो है चैप्टर नंबर 2 में एक वाक्य बनाने के लिए बोला था। जब मैं कल नोटबुक्स चेक कर रही थी तो मुझे एक प्रॉब्लम जो है वो दिखी कि बच्चों को गृह कार्य का मतलब जो है वो समझ नहीं आता है। गृह कार्य का मतलब घर के काम नहीं होते हैं। बच्चे जो है अपना वाक्य बना रहे थे घर का काम को लेकर। गृह कार्य का मतलब होता है जो आपको स्कूल से टीचर्स काम देते हैं और वो आप घर जाकर करते हो, जैसे जिसको आप होमवर्क बोलते हो। ठीक है, वो होमवर्क होता है। तो बच्चे कह रहे थे कि मेरी माता जी गृह कार्य में बहुत निपुण हैं। गृह कार्य का मतलब जो है यहाँ पर जो है वो क्या है, घर से जो आपको काम मिलता है टीचर्स की तरफ से वो करना। ओके, यस, नेक्स्ट हमारे पास है, आपको मैंने उसके बाद निबंध भेजा था होली। ठीक है, होली का त्योहार जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रसिद्ध त्योहार है ना, और उसके बारे में आपको विशेष जानकारी जो है आप कैसे मनाते हो आपको पता है। और मैंने आपको वीडियो में भी बोला था कि आपको जो असाइनमेंट में दिया गया है या मैं वीडियो में जो बोल रही हूँ आपको वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज जो है वो वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं कहना कि मैम ये वर्ड डिफिकल्ट है, ये मेरे को लिखना नहीं आ रहा है। तो आपने जो है उसको अच्छे से, पहले मेरी बात सुन लो, आंसर देना शुरू कर दिया बच्चों ने, बात सुन लो बच्चे मेरी पहले। तो आपने अपनी लैंग्वेज में वहां पर आप लिख सकते हो। होली के त्योहार के बारे में लिखना जो है वो मुश्किल नहीं है, आप सब जो है इसको मनाते हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मनाते हो, आप वहां पर आसानी से लिख सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से पॉइंट में क्या लिखना है। ठीक है, भूमिका में आपको क्या लिखना है, मनाने के कारण में क्या लिखना है, लाभ हानि में क्या लिखना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, उसको मिक्स नहीं करना है आपने। ठीक है,
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, होली किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो मोस्टली बच्चों ने आंसर्स जो है वो लिख ही दिए हैं, हिंदू धर्म का। लेकिन हमारा जो देश है वो क्या है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सब मिलकर इसको मनाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही इसको मनाते हैं, सब मिलकर इसको मनाते हैं। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था? हिंदू धर्म से जो है ये त्योहार मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, हिंदू धर्म। और बच्चे कुछ पंजाबी और हिंदी में भी टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। हिंदी कीबोर्ड चलाना सीख लिया बच्चों ने, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का त्योहार कौन से महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है? पूर्णिमा मैंने आपको बोला था फुल मून नाइट जिसको बोलते हो, ठीक है ना? और वहां पर एक महीना जो है वो मेंशन किया गया है, कौन सा है वो बताइए? कार्तिक, फाल्गुन, माघ और बैसाख। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, 1 2 में आंसर आ रहे हैं। शिवांग ने 3 लिखा है, सुमन ऊपर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने 3 लिखा है। 1 और 2 जो है आंसर ज्यादा आ रहे हैं, एक्चुअली आपको क्लियर नहीं है इसका मतलब, ठीक है? कार्तिक लिखा है नीलम शर्मा के अग्रवाल के नाम से शायद जिन्होंने ज्वाइन किया। कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 4 भी लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप आंसर दे रहे हो वो सबसे बड़ी बात है। आप आंसर दे रहे हो वो सबसे बड़ी बात है। क्लियर तो हम बाद में कर ही लेंगे, क्योंकि जब आप आंसर देते हो तो आपको क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की कि सही आंसर क्या, और जब आप सही आंसर जानते हो तो आपको वो याद भी रहता है, ठीक है? तो हमेशा जो है जब भी एक्टिविटी करवाई जाती है तो अपनी पार्टिसिपेशन जो है पूरी रखा करो। ओके, बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चे 1 लिख रहे हैं, कुछ 2 लिख रहे हैं, और बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 3 और 4 में आंसर दिया है, लेकिन बच्चे ज्यादा 1 और 2 में कंफ्यूज हैं। बच्चे, जो होली का त्योहार है वो फाल्गुन मास में आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन जो आपका 2 है वो करेक्ट है, ठीक है? फाल्गुन मास कब शुरू होता है? जब फरवरी में संक्रांति आती है ना, जिसको आप पंजाबी में संग्रांत बोलते हो, संक्रांति आती है, तो तब से जो है हमारा फाल्गुन मास शुरू होता है और मार्च के मिड तक रहता है वो, ठीक है? उसी के बीच में जब पूर्णिमा आती है, फुल मून नाइट आती है, तो होली का त्योहार मनाया जाता है। क्लियर? अब अच्छे से याद रखना कि फरवरी के महीने में संक्रांति पर जो मास शुरू होता है, महीना शुरू होता है, उसको फाल्गुन मास कहते हैं, और इसी महीने की पूर्णिमा में जो है वो होली का त्योहार हम मनाते हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट है, कौन अपने आप को भगवान मानता था? हरीशचंद्र, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। आपने सही स्पेलिंग इसमें देखने हैं कि कौन से हैं। अगर तो आपने उसको पढ़ा होगा असाइनमेंट में से, फिर तो आपके आंसर मेरे पास सही आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर गड़बड़ करने वाले हो आप लोग, और कर रहे हो। कुछ बच्चे 1 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, कुछ 4, कुछ 3। बच्चे, होली के त्योहार में 3-4 वर्ड्स हैं जो बहुत मुश्किल हैं, वो आपको 5 टाइम्स लिखकर लर्न करनी है, ठीक है? जैसे ये हिरण्यकश्यप के स्पेलिंग हो गए, उसके बाद आपकी पूर्णिमा, फाल्गुन मास, ये स्पेलिंग सब आपने बहुत ध्यान से लिखने हैं और इसको लर्न करना है। ऑप्शन 3 जो है वो लिख रहे हैं बच्चे, 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। हरीश चंद्र भी लिख रहे हैं हिंदी में, वो भी वेरी गुड। 2 भी ऑप्शन आ रहा है, 3 भी ऑप्शन आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसका मतलब आपने स्पेलिंग्स को अच्छे से नहीं देखा है। 3 4 2 3 4 2 में जो है ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि सेम सेम ही लग रहे हैं ना। हरीश चंद्र तो बिल्कुल गलत है, ये मैं बता देती हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो देखिए कौन सी है। ध्यान से स्पेलिंग्स देखो। आ रहा है। यस, मैं आपकी जरा टूट ऑप्शन गई ना,
जब ये सारी जुड़ी हुई और थी जोगिंदर कुमार के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, बच्चे म्यूट योरसेल्फ। यस, हमारी सही ऑप्शन बच्चे ऑप्शन नंबर 2 है, हिरण्य कश्यप। ठीक है, यहाँ पे अण भी आधे की साउंड आ रही है और श भी आधा आ रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके स्पेलिंग्स जो हैं अच्छे से लर्न करो, नहीं तो आप एग्जाम्स में भी गड़बड़ करोगे इस चीज की। ठीक है, तो जो आपके सेकंड स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था। यहाँ पर भी जो है मैंने स्पेलिंग्स जो हैं वो ही, उसमें ही डिफरेंस है थोड़ा सा। अब आपने देखने हैं कि इसमें से कौन से स्पेलिंग सही हैं। प्रहलाद, 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 प्रहलाद। अब इसको अच्छे से जो है पढ़ो और देखो कि कौन से स्पेलिंग्स जो हैं वो सही हैं। बच्चे 1 और 2 में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं और 2 आंसर दे रहे हैं। मोस्टली बच्चे 1 और 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चे ध्यान से पढ़ो अच्छे से, फिर उसको करो। बच्चे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, प्रहलाद। ठीक है, यहाँ पे ह का साउंड जो है वो पूरा नहीं आ रहा है। प्रहलाद, प्रहलाद नहीं बोल रहे हम। ठीक है, प्रहलाद। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था। होलिका, इसमें भी स्पेलिंग्स को ही आपने ध्यान से देखना है। होलिका, होलिका या होलिका, होलिका। ओके, थैंक गॉड। सेकंड इस क्वेश्चन के मेरे को आंसर मोस्टली जो है वो सही आ रहे हैं। हाँ, यस, बच्चे ऑप्शन 2 जो है वो लिख रहे हैं मोस्टली। कुछ बच्चे जो हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भी लिख रहे हैं। बच्चे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको इस एक्टिविटीज से ये समझ आ गया कि अगर हमने निबंध करना है तो हमें जो है स्पेलिंग्स पर खास ध्यान देना है। लैंग्वेज आप अपनी यूज कर सकते हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको वैसे ही लर्न करना है, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं उसकी मिस्टेक्स कम हो। ठीक है, तो नाउ अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। प्रतिभा मैम, if you have any query, write in chat box.